Welcome back, dear students. Today we have lecture 2 on monotonicity. Monotonicity is our fourth application of derivative. And today what we are going to do, I promise you, after that you will love, आपको प्यार हो जाएगा कैलकुलस से. आज हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करने जा रहे हैं जिसके यूजिंग मोनोटोनिसिटी कि आपको मैथमेटिक्स में मज़ा आने लगेगा. So, I'm going to put the heading to find number of real roots. We can also say solutions of an equation using monotonicity. Yeah. Last time we did monotonicity, and the meaning of monotonicity is to decide increasing and decreasing behavior of a function. So today what I have written, to find number of real solutions of an equation using monotonicity. How? Number of real solutions of an equation f of x equal to 0 is always equal to number of times intersection of graph of f of x with x-axis. You have to find number of real solution of an equation f of x equal to 0. It will be equal to number of times intersection of graph with x-axis. We have an equation f of x equal to 0. We should draw the graph of f of x. Now the graph is cutting x-axis how many times? So many number of real roots will be possible. Are you getting me? Equation must be f of x equal to 0. Right hand 0 and left is called f of x. Now there is an equation where we have something on left, something on right. Then first we will transfer everything on left, will make fx equal to 0. Then we will go for the graph. For this thing to be valid, equation must be in this form, means right 0 and left will be assumed f of x. If we have something on right hand side, तो something को left में transfer कर लेंगे, fx equal to 0 बना लेंगे, then we will talk about graph. Are you getting me? चलिए, I am taking a problem. We have to decide number of real solutions of the equation, number of real solution of the equation x to the power 7 plus 14 times x की power 5 plus 16x cube plus 30x minus 560 equal to 0. We have to find number of real solutions of this equation. Number of real solution of this equation. क्या बताया मैंने? Number of real solution of fx equal to 0 equal to number of time intersection of graph with x-axis. So how to do this problem? Let f of x is equal to
left of equation. So f of x equal to x cube power 7 plus 14 times x cube power 5 plus 16 x cube plus 30x minus 560. Is it? F of x is equal to x to the power 7 plus 14 times x cube power 5 plus 16 x cube plus 30x minus 560. Now we will draw its graph. We will draw its graph. To make the graph, we will take help of monotonicity. Monotonicity means idea about increasing nature and decreasing nature. To make this graph, I will have idea where graph is increasing, where graph is decreasing. So for that purpose, f dash x, how much? 7 times x to the power 6 plus 70 times x to the power 4 plus 48 x square plus 30. Now, even power are always positive. So from here, f dash x is positive for all x belonging to real. It implies that f of x is increasing for all x belonging to R. So in the name of monotonicity, we have got information that f of x is increasing for all x. F of x is increasing for all x. Now we will draw diagram. Diagram of what? F of x. So now graph of f of x. I will draw graph of f of x. In the name of graph, what will I draw? I will draw an increasing graph. I will draw an increasing graph. Increasing graph कैसा होगा? नीचे से ऊपर जाएगा. Clear? So most of you must be thinking that कि नीचे से ऊपर जाएगा तो x एक्सिस कट होगी कितनी बार? एक बार. But try to understand, एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर से निकल जाए. ग्राफ इज इंक्रीजिंग, पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर से जा रहा है, ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुई? एक बार भी कट नहीं हुई. तो ये जो इंफॉर्मेशन मिली है ये हमें ये बता रही है कि ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग. अब इंक्रीजिंग नीचे से जा रहा है ऊपर तो एक्स एक्सिस कट हो रही है. पूरा का पूरा ऊपर से निकल गया, एक्स एक्सिस कट नहीं हो रही है. आर यू गेटिंग मी? तो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, आफ्टर गेटिंग द आइडिया अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, you should also get value of the graph at some specific point. कुछ पॉइंट्स पे भी वैल्यू हमें निकाल लेनी चाहिए और सबसे जरूरी होता है जीरो पे निकालना. तो जिसको मैंने f of x लिया है उसकी वैल्यू जीरो पे कितनी है? -560. I have to draw an increasing graph and I am also checking the value at zero. तो जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव. तो जो भी ग्राफ मैं बनाऊंगा वो जीरो पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव. जो भी ग्राफ मैं बनाऊंगा वो जीरो पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव. आई हैव टू मेक एन इंक्रीजिंग ग्राफ हैविंग नेगेटिव वैल्यू एट जीरो. नाउ देयर इज वन एंड ओनली वन चांस कि ग्राफ ऐसा कुछ होगा. देयर इज वन एंड ओनली वन चांस ग्राफ ऐसा कुछ होगा. इन दिस वे एक्स एक्सिस हमारी कट हुई कितनी बार? एक्स एक्सिस कट हो रही है एंड इट इज कट ओनली वन टाइम. यही बात समझ में? हमें पता लगा ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, नॉट इंक्रीजिंग. ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ऊपर से चला गया और ये भी हो सकता है. जीरो पे वैल्यू नेगेटिव है, इट इंडिकेट्स दैट ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करता हुआ इंक्रीजिंग होगा. ग्राफ इंक्रीजिंग कटिंग वाई एक्सिस ऑन द नेगेटिव साइड. So in this way we are getting intersection with x-axis only one time. So there is one and only one real root. एग्जाम में ये भी पूछ सकता था कि जो वन रियल रूट होगा दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव. तो वी कैन ऑल्सो आंसर दैट वी हैव वन रियल रूट एंड दैट इज पॉजिटिव. एग्जाम में ऑप्शन आ सकते हैं बन के नो रियल रूट, पॉजिटिव रियल रूट, निगेटिव रियल रूट. So here what is our final answer? One real root and that is also positive. Fine? तो प्रॉब्लम के अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या निकला? प्रॉब्लम का आंसर
वन सॉल्यूशन. प्रॉब्लम है, हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, सो आवर आंसर इज वन रियल सॉल्यूशन. बोलिए, आया मजा कि एक बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया है एंड विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनोसिटी वी हैव डिसाइडेड रियल सॉल्यूशन. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now the next problem I have, number of points in minus infinite to infinite for which x square minus x sin x minus cos x equal to 0 will be option A 6, option B 4, option C 2, option D 0. फाइन. जिनको लगता है कि दे कैन डू दिस प्रॉब्लम, वीडियो को पॉज करिए और प्रॉब्लम को बनाइए. दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम द पैकेज, IIT का आया हुआ प्रॉब्लम है. तो जिनको लगता है कि दे कैन डू, वीडियो पॉज करिए, बनाइए. मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप पहले वीडियो पॉज करके देखिए, फिर आप वीडियो दोबारा स्टार्ट करके मेरा सॉल्यूशन देखिएगा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव एन इक्वेशन फॉर विच वी आर आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ पॉइंट इन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मतलब रियल के अंदर, रियल वैल्यूज के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पॉइंट, इन अदर वर्ड्स number of solutions. So in this problem also we are asking number of real solutions. Once again we are looking for number of real solutions, and we know that for an equation f of x equal to 0, number of real solution depend upon intersection of graph with x-axis. So let assume left hand side is equal to f of x. So f of x is equal to x square minus x sin x minus cos x. We will have to draw the graph. Graph of what? Graph of f of x. We will draw graph of f of x. So we must be known about increasing and decreasing interval for f of x. So f dash x is dy by dx of x square minus dy by dx of x sin x minus dy by dx of cos x. So it is 2x minus x cos x plus sin x, cos का differentiation minus sin, it will make plus sign. So finally we have x into 2 minus cos x. So f dash x, x into 2 minus cos x. Now in the previous problem differentiation करते ही increasing decreasing समझ में आ गया था, but here in this problem after differentiation we are getting x into 2 minus cos x. Now it is neither fully positive nor fully negative. It can be positive negative both. ये पूरे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं. अब आप इस पे देखो, 2 minus cos x, may I say is positive. मैंने इसकी बात करी, 2 minus cos x की. cos क्या होता है? cos 1 से छोटा होता है, तो 2 minus cos क्या होगा? पॉजिटिव. नाउ डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इट विल टोटली डिपेंड अपॉन x. सो आई एम गोइंग टू राइट f dash x greater than 0 for all x greater than 0, less than 0
फॉर ऑल x लेस देन 0, इक्वल टू 0 भी लगा दो. बोलिए, डू यू एग्री विद मी? सिंस दिस टर्म इज पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव होना टोटली x पे डिपेंड करेगा. x अगर पॉजिटिव हुआ तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव हुआ तो डेरिवेटिव नेगेटिव. सो f of x is increasing for x greater than equal to 0, decreasing for x less than 0. So this time we have to draw the graph which will be increasing as well as decreasing. Increasing for positive x, decreasing for negative x. चलिए बनाते हैं ग्राफ. Now graph of f of x. Graph of f of x. Let it is 0. Now what we have to draw? After 0 increasing लेना है. Increasing मतलब ऊपर जाएगा. Before 0 decreasing लेना है. Decreasing मतलब ऊपर से नीचे आएगा. But 0 पे वैल्यू क्या है, जब तक वो नहीं पता होगी वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ. बात समझना मेरी. 0 पे वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो ग्राफ यहां से इंक्रीजिंग जाएगा. 0 पे वैल्यू अगर निगेटिव हुई तो ग्राफ यहां से इंक्रीजिंग जाएगा. तो जैसा पिछली प्रॉब्लम में किया था, सिमिलरली हियर हम 0 पे वैल्यू पता करें. आइए, f ऑफ x किसे लिया था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. पुटिंग 0 हियर, 0 रखने पे 0 0 cos 0 1. तो f ऑफ 0 इज माइनस 1. तो 0 पे वैल्यू विल बी माइनस 1. At 0 we have to take minus 1. At 0 we have to take minus 1. 0 पे हम लोगों को minus 1 वैल्यू लेनी है. At 0 we have to take minus 1. Now greater than 0 के लिए इंक्रीजिंग. 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे वैल्यू -1 है और यहां से ग्राफ इंक्रीज करेगा. ऐसा कुछ आएगा. ये समझ में आया? 0 पे ग्राफ की वैल्यू -1 है एंड आफ्टर 0 इंक्रीज. सो फ्रॉम हियर ग्राफ विल इंक्रीज. 0 के पहले डिक्रीज. डिक्रीज कहां से आएगा? डिक्रीज ऊपर से नीचे आएगा. सो दिस वन. इन दिस वे वी आर गेटिंग अवर ग्राफ इन पैराबोलिक शेप एंड x axis is cut how many times? Clearly x axis is cut at 2 places. So what's the answer? Now our answer is 2 points. Our answer is 2 points. Problem में पूछा गया था number of points. So our answer is 2 points. बताइए स्टूडेंट, is there any doubt? Our answer is 2 points. और एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि वो जो 2 पॉइंट्स हैं both are positive, both are negative, one positive, one negative, so we can also say that 2 points out of which 1 positive and 1 negative. Clear? बोलो, बन रहा? चलिए, one more, next problem. Now I have problem where we have to tell number of solutions of the equation x into e to the power sin x is equal to cos x. In the interval 0 to pi by 2 will be, options are 1, 2, 3,
एंड 4. क्लियर? तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए, पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद ट्राई करिए. वीडियो को पॉज करिए, प्रॉब्लम ट्राई करिए. मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं, लेकिन पहले आप खुद उसको बना के देखिए, देन वापस आके फिर सॉल्यूशन देखिएगा जो मैंने किया. क्लियर? सो once again problem has language number of solutions in the interval 0 to pi by 2 means real solutions, but this time we are looking for solution in some specific interval, that is 0 to pi by 2. one more thing, हमारी प्रोसेस में we take the equation f of x equal to 0. here we have something on left, something on right. तो first I will transfer matter on right hand side towards left. So now equation is this one. We have to find solution of the equation x time e to the power sin x equal to cos x, which can also be written as x time e to the power sin x minus cos x equal to 0. Then we assume left hand side is equal to f of x. We assume left hand side is equal to f of x. Now f dash x, so it is dy by dx of x into e to the power sin x minus dy by dx of cos x. How to do this differentiation? U into v. So u into differentiation of v plus differentiation of u into v, differentiation of cos minus sin, so it will make plus sin. So now f dash x equal to x into e to the power sin x into cos x plus e to the power sin x plus sin x. Fine. This is our value of f dash x, x time e to the power sin x into cos x plus e to the power sin x plus sin x. This is our value of f dash x. Now, अब इसको ध्यान से देखिए. May I say it is positive for all x belonging 0 to pi by 2. We have to find number of solution in the interval 0 to pi by 2. So we have to draw the graph only for the interval 0 to pi by 2. So we have to check monotonicity only for the interval 0 to pi by 2. For 0 to pi by 2, x positive, e की power positive, cos positive, sin positive, so this derivative is positive. It implies that f of x is increasing in the interval 0 to pi by 2. Now, graph of f of x and we will draw the graph only for the interval 0 to pi by 2. ये 0 और ये pi by 2. Clear? We have to draw the graph for the interval 0 to pi by 2. तो 0 से pi by 2 में हम लोग अपना ग्राफ ड्रॉ करना है. और कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है? इंक्रीजिंग. बट अब ये पता होना चाहिए ना कि इंक्रीजिंग तो बनाना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जाके खत्म करना है. तो उसके लिए वैल्यूज निकालने, 0 पे वैल्यू निकालने. f0 ये fx है तो f0 विल बी 0, cos 0 1. सो f0 इज -1. 0 पे वी हैव वैल्यू -1. 0 पे वी हैव वैल्यू -1. स्टूडेंट अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ. अब अगर आपको, आप में से किसी को लग रहा हो
ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, इंक्रीजिंग होगा, एक्स एक्सिस को काटेगा? नॉट नेसेसरी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यहीं खत्म हो जाए। देखो ग्राफ या तो ये होगा, इज इट, या ये भी तो हो सकता है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, बताओ, ये भी तो इंक्रीजिंग है और एक्स एक्सिस कट हो रही है, नहीं कट हो रही है। सो नाउ एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन वैल्यू एट पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 पे ग्राफ की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर हुई तो जब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो एक्स एक्सिस कट हो जाएगी। पाई बाई 2 पे वैल्यू निगेटिव हुई तो ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे रह जाएगा। सो नाउ वी शुड ऑल्सो ट्राई वैल्यू ऑफ द ग्राफ एट पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2। चलो पाई बाई 2 e to the power sin pi by 2, sin pi by 2 1, cos pi by 2 0. So I am writing pi by 2 into e, pi by 2 into e means positive। बोली बात समझ में? तो पाई बाई 2 पे ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 पे ग्राफ की वैल्यू निगेटिव है, एंड वी हैव टू मेक इंक्रीजिंग। तो एक और एक ही रास्ता है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाके खत्म। In this way, x-axis is cut at how many places? In this way, clearly x-axis is cut at only one place. तो हमसे पूछा गया था number of real solution. So what is our answer? Our answer is one solution. Our answer is one solution. Is this okay? Our answer is one solution. बोलिए, मजा आ रही है कि इक्वेशन हमें गिवन है, उसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे गए हैं। वी आर एबल टू डू दैट जस्ट मेकिंग द ग्राफ कटिंग एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी प्लेसेस, corresponding values of x will work as number of real solution. Is it? Now students, we have next problem. Now in this problem equation is given but we are not looking for number of real roots. Already given that equation has one real root, keeping it in mind we are looking for value of k, and k is given positive. K is given positive, keeping it in mind we have to find the value of k such that equation has only one real root. इससे पहले के प्रॉब्लम्स में हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, इक्वेशन के रूट्स निकालते थे। दिस टाइम रूट इज गिवन, वन रियल रूट। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ बात करें कि इसका जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ क्या करना चाहिए, ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करना चाहिए, ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है, वहां पे भी एक रियल रूट होता है। जैसे याद करो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब एक्स एक्सिस को टच करता है तो वी गेट टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मीनिंग क्या होता है, ओनली वन वैल्यू। तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट मीन्स व्हाट, इस इक्वेशन को केवल एक एक्स एग्री करे। इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, इट मीन्स इक्वेशन को केवल एक एक्स एग्री करे। तो ग्राफ के टर्म्स में अगर बात बोलें तो इसका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता हुआ जाए या ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर जाए। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच कर गया तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या होगा। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस वन। नाउ what about this expression, it is positive or negative? what is k? k पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, e की पावर x क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। नाउ पॉजिटिव माइनस वन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आंसर है बोथ। मैंने लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, सिंस k पॉजिटिव। k हमारा पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, दैट्स द रीजन दिस एक्सप्रेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। इट इंप्लाइज दैट f of x will be increasing and decreasing both।
अगर ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ. ग्राफ ऑफ एफ एक्स will be increasing and decreasing both. So now we have to make a graph which can be increasing decreasing both. We have to make a diagram which can be increasing decreasing both. अब आप मुझे खुद बताइए, हमारी रिक्वायरमेंट है 1 रूट की, हमारी रिक्वायरमेंट है 1 रूट की. सो ग्राफ इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, ग्राफ शुड बी increasing and decreasing both. Graph should be increasing and decreasing both. May I say it will be in it will be in shape of parabolic. Parabolic shape का ग्राफ होगा. ग्राफ मुझे increasing और decreasing दोनों चाहिए. अब कोई ग्राफ अगर increasing और decreasing दोनों है तो वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा. चलो, जैसे मैं अगर ये बोलूं कि what are the possibilities, वॉट आर दी पॉसिबिलिटीज, ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो सकता है. इफ यू वांट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ, तो ग्राफ को जिस तरह से पैराबोलिक शेप टाइप का होगा. नाउ अगर ऐसा वाला हो गया तो कितने रूट, एक भी रूट नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस कट नहीं हो रही है. तो हमको ऐसा वाला नहीं चाहिए कि पूरा का पूरा ऊपर से निकल जाए, नॉट रिक्वायर्ड. ये वाला अगर हो जाए तो एक्स एक्सिस 2 बार कट हो गई, ये भी नहीं चाहिए. सो if our requirement is only 1 root and we know that shape will be parabolic, so एक और एक ही रास्ता बचता है कि ग्राफ x एक्सिस को टच कर जाए. पैराबोलिक ग्राफ टचिंग x एक्सिस, अगर ऐसा ग्राफ बन जाए तो यस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी मिल गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी मिल गया, एज वेल एज 1 रियल रूट भी आ गया. जल्दी बोलो. ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ. नाउ कंसीडरिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ, ग्राफ का शेप पैराबोलिक होगा. अब पैराबोलिक शेप में पूरा का पूरा ऊपर से निकल गया, नो रियल रूट. एक्स एक्सिस को कट करते हुए गया, 2 रूट. वो दोनों सिचुएशन में नहीं चाहिए. वी वांट ओनली 1 रियल रूट. तो एक और एक ही रास्ता है कि आपका जो पैराबोलिक ग्राफ बने वो एक्स एक्सिस को टच कर जाए. नाउ लेट्स से ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x1. अब आइए, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है, वहां पे ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, 0. और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, वो भी 0. तो मैंने अब लिखा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f डैश, या f ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f डैश x1. इस बात को समझिएगा. फोर्सफुली वी आर गोइंग फॉर दिस ग्राफ टू फुलफिल द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ दिस ग्राफ मीन्स ग्राफ टचिंग x axis. Let touching x axis at x1. Now the point where graph is touching x axis, value of the graph, value of the function will be 0. टच कर रहा, x axis tangent है, so slope will be 0. So now mathematically we will use the condition f of x1 equal to 0 is equal to f of 0 is equal to f dash x1. Now what will we get from this condition? F of x1 equal to 0, that means k times e to the power x1 is equal to x1. Now this one, f dash x1 equal to 0, f dash x1 ये रखा है, so what will come? k times e to the power x1 is equal to 1. इन दोनों से क्या मिलेगा, x1 is equal to 1. From these two we will get x1 is equal to 1. Now x1 is equal to 1 को पुट कर दिया, इन दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए. लेट्स से k टाइम्स e to the power x1 equal to 1 में पुट किया, so k is what, k is coming 1 by e.
k is coming 1 by e. That's my answer. k is coming 1 by e. समझ लीजिए, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. इक्वेशन गिवन है, बोला गया है 1 रियल रूट होना चाहिए. दिमाग में पिक्चर आती है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार काटे, बट व्हेन we do the differentiation, we are getting that graph will be increasing decreasing both. Now increasing decreasing both, that means graph will be like parabola. Now a parabola graph either will not cut x-axis, will cut x-axis at 2 points, or will touch x-axis. Our requirement is one root. So that requirement will be fulfilled only when graph is touching x-axis. For that mathematical condition, f of x1 is equal to 0 is equal to f dash x1. अब आप में से कई लोगों को इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे. आपने चाह लिया कि आपको ये ग्राफ चाहिए, बट ये ग्राफ आने के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट इज रिटन. देन फॉलोइंग इट वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ k. बोलो. Clear? Now I am writing the next problem, and next problem is coming, making slight change in the present problem. जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने करी उसी में एक छोटा सा चेंज कर दिया गया, एंड आई होप कि ये प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए. Equation is same. Once again k is positive, but this time we are talking about two distinct roots. This time we are talking about two distinct real roots. Value of k, for which equation has two distinct real roots. Equation is same. Once again k is positive, but this time we are looking for two distinct roots. I hope आप में से कई को इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन सेम है, k पॉजिटिव है, तो वंस अगेन ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आएगा, ग्राफ पैराबोलिक शेप में आएगा. टू डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तब की बार अपनी चाहत होगी कि वो पैराबोलिक शेप एक्स एक्सिस को दो जगह काटे. उसके बाद क्या, तो वीडियो को पॉज करिए. जिनको लग रहा है कि उन्होंने प्रॉब्लम समझ लिया, अच्छा इस प्रॉब्लम के जो ऑप्शंस हैं, आई एम राइटिंग द ऑप्शंस. ऑप्शंस आर in open interval 0 to 1 by e, 1 by e to 1, open interval 1 by e to infinite, and open interval 0 to 1. वीडियो को पॉज करिए. जिनको जिनको लगता है कि प्रॉब्लम बना लेंगे, दे शुड स्टार्ट द प्रॉब्लम. बनाइए. बनाइए. जिनको लगता है कि दे कैन डू द प्रॉब्लम, बनाइए. मैं इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो वीडियो पॉज करके बनाइए, देन उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे आइएगा. फाइन. सो हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम? लेट f of x is equal to k times e to the power x minus x, f dash x is equal to k times e to the power x minus 1. It will be positive and negative both. Reason k greater than 0. So f of x will increase and decrease both. ग्राफ की बात करेंगे तो f of x will increase and decrease both. f of x will increase and decrease both. Now increase and decrease both, so increase and decrease both, so simple सी बात है, graph will be just like parabolic shape. We want two distinct real roots, तो क्लियरली रिक्वायरमेंट हमारी ऐसे ग्राफ की होगी.
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो क्लियरली हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ ग्राफ की होगी. नाउ टू गेट दिस ग्राफ व्हाट शुड बी द मैथमेटिकल कंडीशन. पिछली बार में ग्राफ क्या था, टचिंग एक्स एक्सिस था, तो जहां पे टच कर रहा था वहां पे फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों जीरो कर दिए थे. बट दिस टाइम व्हाट टू डू. सो पिछली बार जहां टच कर रहा था वहां पे एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही थी. अब की बार मैं अगर बोलूं ये एक पॉइंट है x1 where tangent is parallel to x axis. There is some point x1. There is some point x1 where tangent can do can be parallel to x axis. So here if I say f dash x1 0 and f of x1 less than 0. बोलिए. In the previous problem f dash x1 f of x1 both were 0, but this time f of x1 negative and f dash x1 again 0. So f dash x1 it will give k times e to the power x1 minus 1 equal to 0. So e to the power x1 is equal to 1 by k. So x1 is equal to log of 1 by k to the base e. So x1 is equal to minus log k. log 1 by k को क्या लिखोगे, माइनस log k. इस पे आओ, f of x1 k times e to the power x1 minus x1 less than 0. फाइन. अब इन वैल्यूज को यहां पे रखो. सो k टाइम्स e to the power log 1 by k minus k times e to the power log k. x1 is माइनस log k और हमें फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है k की. तो x1 is log 1 by k, मैंने यहाँ पे ले आके वैल्यू रख दी. तो e to the power log 1 by k minus x1 less than 0. So it will make k into 1 by k minus x1 less than 0. या समझो, e की पावर में log होने पे log हट जाता है, e की पावर में log होने पे log हट जाता है. So now one side we have x1 is equal to minus log k and other side we have 1 minus x1 less than 0. 1 minus x1 less than 0, it means 1 less than x1, x1 greater than 1. So minus time log of k greater than 1, माइनस टाइम log of k greater than 1, इसको लिखेंगे log of k लेस देन माइनस 1. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया. नाउ फाइनली k लेस देन e टू द पावर माइनस 1. फाइनल आंसर k बिलोंगिंग 0 to 1 by e, because it was already given that k is positive. Already given k is positive, so final answer k belonging 0 to 1 by e. So student, just check both the problems carefully, this one as well as the previous one. In the previous one, for the given equation, one root was required. In the present problem, for the same equation, two distinct real roots required. So there will be changes in the graph according to that, changes in mathematical condition, and finally we are able to get our answer for k. Okay, note करिए. Now dear students, we are on in second part of today's lecture.
that is stabilizing inequalities. Using the concept of monotonicity, we can also stabilize inequalities. We can prove the inequalities. For example, to prove inequality f of x greater than g of x, we can prove f of x minus g of x greater than 0. We can prove h of x greater than 0, where h of x is equal to f of x minus g of x, and h of x greater than 0 can be proved drawing graph of h of x with the help of monotonicity. Okay, we have an inequality f of x greater than g of x. In place of proving it, we can prove f of x minus g of x greater than 0. We can prove h of x greater than 0, and h of x greater than 0. H of x greater than 0 can be proved drawing graph of h of x. Okay, chलिए I am taking a problem. We have to prove that ln 1 plus x greater than x upon 1 plus x for all x greater than 0. Clear? This is an inequality which we have to prove. Now, आप में से अगर किसी के माइंड में चल रहा हो कि जो एग्जाम हमें देना है उसमें तो प्रूविंग के प्रॉब्लम आएंगे नहीं, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रॉब्लम? माय डियर, in the exam this problem can be asked in some different manner. They can ask, find the value of x for which this inequality is true. They can ask values of x for which this inequality is true. So mainly you have to understand how to prove, how to solve such kind of inequalities following concept of monotonicity. So we have to prove it. In place of it, we will prove ln 1 plus x minus x upon 1 plus x greater than 0. Now, we are assuming left hand side h of x. So, ln 1 plus x minus x upon 1 plus x. Let h of x is equal to ln 1 plus x minus x upon 1 plus x. So, we have to prove h of x greater than 0. We have to prove h of x greater than 0 for all x greater than 0. Clear? So now our problem is prove h of x greater than 0 for all x greater than 0. It can be done if we know the graph of h of x. How will graph come? Following concept of monotonicity. So let's to make the graph, we will do differentiation of h of x. H dash x. How much? 1 upon 1 plus x minus differentiation of it, quotient rule, u upon v, 1 upon 1 plus x whole square. मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है, बट आप इसको करके देखना. डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, वी विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. चेक करो इस डिफरेंशिएशन को.
मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आप इसे करके देखो. इट इज 1/1 plus x whole square. So now it will be how much? Denominator 1 plus x whole square. What will come in numerator? 1 plus x minus 1. Numerator is x. So h dash x upon 1 plus x whole square. So now h dash x upon 1 plus x whole square. It implies that h dash x greater than 0 for all x greater than 0. It implies that h dash x greater than 0 for all x greater than 0. It implies that h of x is increasing for all x greater than 0. Now we will make graph of h of x. We will make graph of h of x. X-axis, y-axis, and here it is 0. Fine. For greater than 0, we have to make increasing graph. तो हमें पता होना चाहिए कि what will be h0. So this is h of x, putting 0 here. ln1 0 और 0 upon 1. 0 तो 0 minus 0 0. So now 0 पे ग्राफ की वैल्यू 0 है एंड फॉर ग्रेटर देन 0 वी हैव टू मेक इंक्रीजिंग ग्राफ. तो ग्राफ ऐसा जाएगा. अब आप खुद बताइए what is happening in this graph. For positive x is graph positive. For positive x do we have graph positive? Yes. So क्या बोलेंगे? From graph clearly h of x greater than 0 for all x greater than 0. From the graph clearly we have h of x greater than 0 for all x greater than 0. From the graph clearly we have h of x greater than 0 for all x greater than 0. Yeah. One more problem. This time we have to prove 2 sin x plus tan x greater than or equal to 3x for all x belonging 0 to pi by 2, where 0 is included but not pi by 2. 0 is included but not pi by 2. Fine. So it can be written 2 sin x plus tan x minus 3x greater than or equal to 0. Let h of x equal to 2 sin x plus tan x minus 3x. So now we have to prove h of x greater than or equal to 0 for all x belonging 0 to pi by 2. Clear? So now our job is to prove h of x greater than or equal to 0 for all x belonging 0 to pi by 2. So
what will we do? We will find h dash x. How much h dash x? It is 2 cos x plus sec square x minus 3. 2 cos x plus sec square x minus 3. Now, are you getting any indication from here? This is totally positive, totally negative or what? In the previous problem, differentiation करते ही डेरिवेटिव समझ में आ गया था कि पॉजिटिव है तो उस हिसाब से ग्राफ क्या चला गया था, इंक्रीजिंग चला गया था. x is 0 to pi by 2. Now 0 to pi by 2 तो sec स्क्वायर 1 से बड़ा जाएगा, लेकिन 2 cos क्या होगा? cos तो 1 से छोटा होता है ना, तो 2 cos क्या होगा? 2 cos जो भी होगा 2 से छोटा होगा और sec स्क्वायर 1 से बड़ा होगा. नाउ 2 से छोटा प्लस 1 से बड़ा कितना होगा? 3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? मे भी बड़ा, मे भी छोटा. बोलो, ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू आपको दिख रही है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ. सो हमें डायरेक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता लग रहा. हमारे अंदर की चाहत होती है कि डिफरेंशिएशन करते ही डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आ जाए या पूरी तरह से नेगेटिव आ जाए. सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक ही बार में ही क्लियर हो जाए. बट हियर इन दिस प्रॉब्लम, डेरिवेट फॉर द गिवन इंटरवल, डेरिवेटिव मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है. तो बताइए क्या किया जाए? या तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको और सिंप्लीफाई करें एंड ट्राई टू चेक वेयर इट विल बी पॉजिटिव वेयर इट विल बी नेगेटिव. या एक दूसरा जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कभी आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएं वेयर डेरिवेटिव इज नॉट क्लियर रिगार्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव, गो फॉर डबल डेरिवेटिव. क्या बोला मैंने? If first derivative is not answering clearly regarding positive negative sign, go for double derivative. So minus 2 sin x plus differentiation of sec square will be 2 sec x and then sec into 10 minus 3 का 0. So h double dash x is minus 2 sin x plus 10 को साइन कॉस में बदलो तो 2 साइन अपॉन कॉस टू द पावर 3. सो इट इज टेकिंग 2 साइन कॉमन 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स माइनस 1. बोलिए समझ में आता है? मैंने बोला इट इज पॉजिटिव. वाई पॉजिटिव? सिंस एक्स बिलोंगिंग 0 टू पाई बाई 2. और आप में से किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख लीजिए. बताओ. और ये ब्रैकेट हटा दो क्योंकि तुम लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हो कि ये ब्रैकेट है. x कैसा है? 0 से पाई बाई 2 है तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव. कॉस होता है 1 से छोटा. 0 से पाई बाई 2 कॉस विल बी पॉजिटिव लेस देन 1. तो 1 अपॉन कॉस क्यूब क्या होगा? 1 से बड़ा. कॉस होता है 1 से छोटा तो 1 अपॉन कॉस क्यूब 1 से बड़ा. 1 से बड़ा माइनस 1 पॉजिटिव. तो वी आर गेटिंग डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव फॉर व्हाट? 0 से पाई बाई 2. तो अब मैं लिखूंगा सिंस एस डबल डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग 0 टू पाई बाई 2. सो एस डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. इस बात को समझना, यहीं पे कंफ्यूजन ढेर सारे आने वाले हैं. एच डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, एच डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, एच डबल डैश एक्स पॉजिटिव है. सो व्हाट विल वी से? एच डैश इज इंक्रीजिंग. बोलिए. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीज कौन करेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव. इंक्रीजिंग और डेरिवेटिव का क्या कनेक्शन होता है? समथिंग इज इंक्रीजिंग, वी से डेरिवेटिव पॉजिटिव. डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव वो इंक्रीज करेगा. पॉजिटिव कौन है? डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव का. तो इंक्रीज कौन करेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव करेगा.
बोलो जल्दी बोलो, जिसको नहीं समझ में पूछो। सिंस डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, सो फर्स्ट डेरिवेटिव विल इंक्रीज। अब इसको समझना, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, कहां कर रहा है? 0 से पाई बाई 2 में। फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में। कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है, कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो उसकी वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू स्टार्टिंग वाले पॉइंट से हमेशा ज्यादा होगी। फिर से सुनना, समवन इज इंक्रीजिंग, समवन इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ द ग्राफ विल ऑलवेज बी मोर देन वैल्यू एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अरे भाई तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो तो बीच रास्ते में जो भी वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग। सो आई एम गोइंग टू राइट h of x greater than h of 0 for all x belonging 0 to pi by 2, और 0 पे इक्वल है तो ग्रेटर देन और इक्वल। ये बताओ, ये समझ में आता है? h डैश इंक्रीज कर रहा, सॉरी यहां पे मुझे h डैश लिखना चाहिए था, h डैश, h डैश आपका इंक्रीज कर रहा है, एच डैश इंक्रीज कर रहा है, एच डैश इंक्रीज कर रहा है, एच डैश का ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो एच डैश की वैल्यू, एच डैश की वैल्यू कभी भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगी। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 से, सो एच डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, नाउ एच डैश कहां रखा है? ये रखा है। अब इसमें 0 रखो, 0 रखने पे क्या है? cos 0 1 sec 0 1, इट विल बी 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग 0 to pi by 2. So h of x is increasing for all x belonging 0 to pi by 2. स्टूडेंट इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये जितना भी मैंने राइट हैंड वाला पोर्शन किया जस्ट टू रीच द कंक्लूजन अबाउट मोनोटोनोसिटी ऑफ h of x। हमारा h of x ये था, हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? इफ इट इज नॉट क्लियर गो फॉर डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव से, डबल डेरिवेटिव के पॉजिटिव आने से हमें किसके बारे में पता लगा? फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में पता लगा। देन फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें पता लगा h ऑफ x के बारे में। तो ये जितनी राइट हैंड वाली एक्सरसाइज आप देख रहे हो ये केवल h ऑफ x पॉजिटिव होगा कि निगेटिव वो पता करने के लिए किया गया कि h डैश x यहां से हमें क्लियर नहीं हो रहा था, यहां पे भी कर सकते थे, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ले लो, एलसीएम ले लो, यहां पे भी साइन क्लियर हो जाएगा। बट फ्यूचर में आपको याद रहे उसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज करके दिखाई कि फर्स्ट डेरिवेटिव से साइन क्लियर ना हो पा रहा हो गो फॉर डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव से किसके बारे में पता लगेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन के बारे में। सो हमें h ऑफ x के बारे में क्या पता लग गया? हमें h ऑफ x के बारे में पता लग गया तो अब अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, किसका ग्राफ? ग्राफ ऑफ h ऑफ x इन द इंटरवल 0 to pi by 2। कैसा ग्राफ बनाना है? इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। और h 0 की बात करें, h ऑफ x हमारा क्या था? 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x, उसमें 0 रखोगे तो h ऑफ 0 इज 0। तो 0 से pi by 2 में वी हैव टू टेक इंक्रीजिंग ग्राफ, तब क्या बोलेंगे? फ्रॉम द ग्राफ it is clear that h of x greater than or equal to 0 for all x belonging 0 to pi by 2. Yeah, and that was our requirement. So at the last I am writing hence proved. At the last I am writing hence proved. तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझिए। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट किया कि एच डैश का साइन डिसाइड करने के लिए हम लोग गए किसके लिए? एच डबल डैश के लिए। ओके, नोट करिए स्टूडेंट, आई एम टेकिंग वन मोर गुड प्रॉब्लम
and here you will find we have sign of inequality 2 times. 2 upon 2x plus 1 less than log of 1 plus 1 by x less than 1 by x, and we have to prove it for x greater than 0. So here in this problem we will do calculation in 2 parts. First we will prove first less than second, then we will prove second less than third. पहले इतना पार्ट प्रूफ करेंगे और देन इसको प्रूफ करेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग, मैंने ऐसा लिखा फर्स्ट वी विल प्रूव 2 upon 2x plus 1 less than log 1 upon 1 plus x. Then we will prove log of 1 upon 1 plus x less than 1 by x. Okay. क्लियर? कि हम लोग प्रॉब्लम को 2 पार्ट में करेंगे. पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, देन फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे. सो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. 2 upon 2x plus 1 less than log 1 upon 1 plus x. It implies that 2 upon 2x plus 1 minus log of 1 upon 1 plus x less than 0. Let h of x is equal to 2 upon 2x plus 1 minus log of 1 upon 1 plus x. So h dash x. Do the differentiation. 2 upon 2x plus 1 after differentiation minus 4 upon 2x plus 1 whole square. करके देखो. Differentiation of 2 upon 2x plus 1 minus 4 upon 2x plus 1 whole square minus 1 upon 1 plus x. Then log के अंदर का differentiation minus 1 upon x square. क्या? चेक करिए. So after calculation it is 1 upon x into 2x plus 1 whole square into x plus 1. This is our h dash x. ये मैंने इसको जब आप एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो फाइनली दिस इज अवर h dash x. फ्रॉम हियर h dash x is clearly greater than 0 for x greater than 0. बोलो h dash x is clearly greater than 0 for x greater than 0. हमें गिवन है x पॉजिटिव, तो x अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो h dash क्या होगा? इंक्रीज करेगा. h dash पॉजिटिव होगा. इट इम्प्लाइज दैट h of x is increasing for all x greater than 0. h of x is increasing for all x greater than 0. Now graph of h of x. Graph of h of x x-axis, y-axis. Fine. We have to make an increasing graph and we have to make the graph for greater than 0. We have to make the graph for greater than 0. Now student, it's a good problem. अब यहाँ पे आपको एक झटका लगेगा. अभी तक हम लोग क्या करते थे? ग्राफ बनाने के लिए 0 पे वैल्यू ले लेते थे. हमें ग्राफ h का ग्राफ कैसा बनाना है? आफ्टर 0 इंक्रीजिंग बनाना है, तो उसके लिए 0 पे वैल्यू पता होनी चाहिए. नाउ यू विल फाइंड हियर कि जिसको आपने एच एक्स माना है, जब आप इसमें 0 रखने जाओगे व्हाट विल हैपन? जब आप इसमें 0 रखने जाओगे तो इट विल बी 2, और जब आप 0 यहाँ रखोगे तो 0 यहाँ रखने पे 1/0 इनफाइनाइट बना लेगा, और ये क्या बना देगा? ये आपका बना देगा ln इनफाइनाइट. अब ln इनफाइनाइट को लेके समस्या आएगी कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ln इनफाइनाइट. फिर से सुना व्हाट आई एम सेइंग.
कि जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये 2 आएगा। नाउ 2 माइनस ln इन्फिनिटी, 2 माइनस ln इन्फिनिटी। अब ln इन्फिनिटी की अगर हम लोग बात करें, पहली बात तो आपको मतलब किसी को लग रहा हो कि 0 कैसे रख दिया, 0 तो डोमेन में नहीं। यस, आई एग्री विद यू कि वी कैन नॉट पुट हेयर 0, वी कैन नॉट पुट हेयर 0, क्योंकि बिकॉज ऑफ 1/x 0 डोमेन में नहीं है। लेकिन हम 0 के नेबरहुड में तो वैल्यू निकाल सकते हैं h0 प्लस। मैं h0 नहीं निकाल रहा हूं, वाई? क्योंकि 0 कैन नॉट बी पुट बिकॉज ऑफ 1/x 0 इज नॉट इन द डोमेन। अब अगर h0 प्लस की बात की जाए तो भाई 0 प्लस का मतलब लिमिट की बात आएगी। तो जब आप x की जगह 0 प्लस रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी कितना जाएगा? इन्फिनिटी। और 0 प्लस का मतलब अप्रोक्सीमेट 0 रखोगे तो इट इज 2, तो 2 माइनस इन्फिनिटी, हमारी वैल्यू लगभग किधर जाएगी? ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो 0 पे वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी होगी। बट अब यहां पे एक समस्या फंस रही है, 0 पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी यानी ग्राफ नीचे होगा, और यहां से तुम्हें ग्राफ को इंक्रीजिंग ले जाना है। माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ इंक्रीजिंग ले जाना है, तो अब तुमको यह पता करना जरूरी है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को काट के ऊपर निकलेगा या एक्स एक्सिस के नीचे रह जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। फिर से सुनो, मुझे यह पता है कि आफ्टर 0 आई हैव टू मेक इंक्रीजिंग ग्राफ, 0 के बाद मुझे इंक्रीजिंग बनाना है, ठीक है। 0 पे ग्राफ की वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी। 0 पे ग्राफ की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, फाइन। 0 पे ग्राफ की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी इज हियर। तो यहां से मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग चलेगा, लेकिन यहां से जो मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ चलेगा वो एक्स एक्सिस को काट के ऊपर निकलेगा या एक्स एक्सिस के नीचे रह जाएगा। ये तभी पता लगेगा व्हेन आई हैव h इनफाइनाइट। मेरी बात समझ में आ रही है? यूजुअली अभी तक हम लोग जितने भी ग्राफ बनाते थे, उसमें 0 पे वैल्यू पता लगते ही ग्राफ का नेचर क्लियर हो जाता था। 0 पे वैल्यू पता लगते ही ग्राफ का नेचर क्लियर हो जाता था। बट हियर इन दिस प्रॉब्लम व्हाट आई एम सेइंग कि 0 पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से जो ग्राफ चलेगा वो एक्स एक्सिस के नीचे रह जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये हमें कौन बताएगा? h इनफाइनाइट। इन्फिनिटी पे ग्राफ की वैल्यू अगर ऊपर हुई तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, और इन्फिनिटी पे ग्राफ की वैल्यू नीचे रह गई तो ग्राफ नीचे रह जाएगा। नाउ h इन्फिनिटी का मतलब होगा लिमिट ओवर h ऑफ x वेयर x स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट। चेक इट, अगर x को इन्फिनिटी रख दिया जाए तो अपॉन में इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, log 1 0, आर यू गेटिंग? इट इज 0। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, इट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ आएगा। बोलो, x अगर h इन्फिनिटी 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या? जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ग्राफ 0 की ओर जाता जाएगा। सो नाउ फ्रॉम ग्राफ it is clear that h of x less than 0 for all x greater than 0। और h of x हम लोगों ने किसे लिया था? 2/2 plus 2x plus 1 minus ln 1 plus x less than 0। बोलो, हमारी इनइक्वालिटी के दो पार्ट थे, जिसमें से पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, दैट इज 2/2x plus 1 minus ln over 1 plus 1 by x less than 0. Is it? Now I am coming to the second part of inequality. Our second part of inequality ln 1 plus 1 by x less than x for all x greater than 0. So ln 1 plus 1 by x minus 1 by x less than 0
लेट एच ओके, और मैं नोइंगली कैपिटल एच ले रहा हूं, कैपिटल एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स ln ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स. So capital H dash, it will be 1 upon 1 plus 1 by x into minus 1 by x square plus 1 by x square. Now it is 1 upon x plus 1 upon x minus 1 by x square plus 1 upon x square. Right? It is minus 1 upon x into x plus 1 plus 1 upon x square. Now take the LCM and get the value. Take the LCM and get the value and check, are we getting this one? 1 upon x square into x plus 1. Capital H dash 1 upon x square into x plus 1. So clearly capital H dash greater than 0 or x greater than 0. It implies that capital H of x is increasing for x greater than 0. Now we will make graph of capital H of x. We have to draw the graph only for x greater than 0. So it is for capital H of x we have to draw the graph. Fine. Now same problem will occur once again जो पिछली बार में आई थी कि मुझे जीरो के बाद इंक्रीजिंग बनाना है, उसके लिए मुझे जीरो पे वैल्यू चाहिए होगी. जब तुम जीरो पे वैल्यू लेने गए तो व्हाट विल हैपन, एच जीरो रखोगे तो कितना आएगा, जीरो रखने पे आएगा ln इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. पहली बात तो जीरो पे वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे. यहाँ पे जब आप h जीरो प्लस करोगे तो इट विल कम ln इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. पुटिंग जीरो मतलब जीरो प्लस, it will come ln infinity minus infinity. Now ln infinity भी एक बड़ा नंबर infinity होता है, तो ln infinity minus infinity कितना होगा. Now it will be a problem. ln infinity minus infinity will be how much. Now it will give the problem कि हम लोग जीरो पे जो ग्राफ की वैल्यू है वो अगर स्टार्ट करनी हो तो कहाँ से स्टार्ट करें, कि हमें ग्राफ क्या लेना है, हमें जीरो के बाद ग्राफ इंक्रीजिंग लेना है, लेकिन जीरो पे वैल्यू क्या लें वो नहीं समझ में आ रहा है. रुक जाओ थोड़ी देर के लिए. नाउ ग्राफ मुझे ग्राफ जीरो से इन्फिनिटी तक ले जाना है. जीरो पे ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के नीचे से चालू होगा या ऊपर से चालू होगा, क्लियर नहीं हो पा रहा है. चलो एच इनफाइनाइट ट्राई करते. एच इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, लिमिट ओवर एच ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट. नाउ इन्फिनिटी रखने पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और ln 1 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, आई एम गेटिंग 0. मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से सुन लेना. मैं इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाह रहा हूं. ln इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, आई एम नॉट टेकिंग द टेंशन. मुझे यह पता है कि मुझे ग्राफ बनाना था जीरो से लेके इन्फिनिटी तक. मुझे ग्राफ बनाना है जीरो से इनफाइनाइट पर. आई हैव टू मेक एन इंक्रीजिंग ग्राफ. इन्फिनिटी पे ग्राफ की वैल्यू जीरो जा रही है, इन्फिनिटी पे ग्राफ की वैल्यू जीरो है, एंड आई हैव टू मेक इंक्रीजिंग ग्राफ. तो बताओ कैसा भी हो ग्राफ हर हाल में एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा. बोलो, हर हाल में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा. फिर से सुनना, मैं तुमसे अगर बोलूं एक इंक्रीजिंग ग्राफ बना के दिखाओ जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट पे जीरो है, मेक एन इंक्रीजिंग ग्राफ जिसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पे जीरो है,
तो ग्राफ पूरी तरह से एक्स एक्सिस के नीचे रह जाएगा. वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ which is increasing and for highest value of x it is 0. तो ग्राफ पूरी तरह से x एक्सिस के नीचे रह जाएगा. ग्राफ इज कंप्लीटली बिलो द x एक्सिस. ग्राफ ने बढ़ने का प्रयास किया लेकिन वो कहां रह गया, 0 ही रह गया. तो नाउ फ्रॉम द ग्राफ क्लियरली h of x less than 0 for all x greater than 0. It means ln of 1 plus 1 by x minus 1 by x less than 0. So in this manner we are able to prove second part of inequality also. In this way we are able to prove second part of inequality also. इस पे ध्यान दीजिएगा. h 0 प्लस इज ln इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. ln इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? आई एम नॉट टेकिंग द टेंशन. कुछ को लग रहा होगा कि ln इन्फिनिटी बड़ा है, पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें से इन्फिनिटी ln इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए. क्यों आना चाहिए भाई? ये इन्फिनिटी दमदार है कि ये इन्फिनिटी दमदार है, किसको पता? लीव इट. ये देखो कि ग्राफ को 0 से इन्फिनिटी जाना था. स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट है. एंडिंग पॉइंट पे ग्राफ की वैल्यू 0 है. आपको स्टार्टिंग से एंडिंग एक ग्राफ बनाना है. एंडिंग पॉइंट पे ग्राफ की वैल्यू 0 है और ग्राफ को इंक्रीजिंग होना है. एंडिंग पॉइंट पे वैल्यू 0 है और ग्राफ को एंडिंग पॉइंट पे ग्राफ की वैल्यू 0 है और ग्राफ को इंक्रीजिंग होना है. तो ग्राफ नीचे से तो उठ के ऊपर आ रहा होगा. इट मीन्स ग्राफ कहां रहेगा? पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा. सो क्लियरली कैपिटल H of x लेस देन 0. सो वी आर एबल टू प्रूव अवर सेकेंड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो. सो इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑन इनइक्वालिटी जहां पे इनइक्वालिटी का साइन दोनों तरफ से था. तो हम लोगों ने लेफ्ट वाला साइन प्रूफ किया, राइट वाला साइन प्रूफ किया. इन दिस वे वी आर एबल टू प्रूव द होल इनइक्वालिटी. क्लियर? प्रॉब्लम में आपको डाउट होगा, दिक्कत आएगी, बट फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम गिव टाइम टू योर सेल्फ. ये नहीं कि आपने एक बार देखा और नहीं समझ में आया. इस तरह की प्रॉब्लम में टाइम दीजिए. रिकॉर्डेड लेक्चर का यही बेनिफिट है कि यू हैव फैसिलिटी कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 10 मिनट 15 मिनट रुक के चीज़ों को समझने की कोशिश करिए. इज इट? विद दिस आई एम कंप्लीटिंग टुडेज लेक्चर.